आपका अगर ऑब्जेक्टिव है चिड़ियों की तरह, ईगल की तरह हवा में उड़ना, तब मुश्किल होगा वो। आप सपने में शायद कर पाओ, बट एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स के लिए उड़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ इन द करंट टाइम्स। बट बट आप जो ह्यूमंस कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। आपको बस देखना है कि वो क्या डिसीजंस हैं जो मैं ले सकता हूँ अभी, थोड़े थोड़े करके, और फिर वो वहां पहुंच जाए। और वो पता है वो होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कुंडलिनी वगैरह पे बिलीव भी नहीं करना है। सच में आप ये प्रैक्टिस करो, 0.1% से 0.2% पे जाओ, आपकी खुद ही कुंडलिनी अवेक हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है। I don't know if I've been lucky, but I had a spiritual experience when I was a child that really pretty much changed my life forever. हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं और आलोक फिर से एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। टीआरएस क्लिप्स पे एक और वीडियो अपलोड हुई है, और एक क्लिप है पूरे पॉडकास्ट से जो कि राष्ट्रीय नंदी उनके ऑल स्टार गेस्ट है। उन्होंने कुंडलिनी के बारे में बताया। तो आलोक, मेरे को बस इतना आइडिया है कि एनर्जी जब ऊपर जाती है तो कुंडलिनी अवेक होती है, चक्रास होते हैं हमारे, वो अलाइन होते हैं। बस इतना पता है मेरे को, इसका डिटेल नहीं पता, ये नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है, इसकी रियलाइजेशन कैसे होती है। व्हाट डू यू थिंक? इसके बारे में मुझे क्या लगता है कि जब हम ना किसी भी फॉर्म, मतलब कोई भी तरीका होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का ना, केवल एक सिंगल तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं। मेडिटेशन से आप कर सकते हो, योगा से कर सकते हो, और भी तरीके हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो तो उससे भी कर सकते हो। तो बेसिकली खुद से कनेक्ट होने को, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि बेसिकली खुद से कनेक्ट होने को ही कुंडलिनी अवेकनिंग बोलेंगे। अभी इसमें एक्चुअल में डीप में क्या होता है उतना तो आइडिया नहीं है मुझे, तो भी वीडियो देख के एक बार देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो शुरू करते हैं, फिर बाकी बात बाद में। Welcome to TRS Clips, where you'll find happiness through your own curiosity. I think Kundalini now is one of those topics that the audience members have at least an idea about. It's a serpent-shaped pool of energy at the base of your spine. As your spiritual practices move forward, as your yoga practices move forward, as your meditation goes deeper, eventually, through the channels of your spine, your Kundalini rises up and connects with your third eye. And that's what some people count as an important checkpoint towards the path of moksha or nirvana or enlightenment. I don't know if it's the same as moksha or nirvana or enlightenment, but they say that Kundalini Jagran, when your Kundalini awakens, not only do you have unfathomable blissful experiences, but of course you're spiritually evolving. And in some people, they can have a premature Kundalini Jagran, which can be extremely dangerous. Yes. More or less. So when you're praying to the Mahavidyas, through the course of those Mahavidya Tantras, there could be a point where Kundalini... There will be a point. There will be a point. Yeah. And not just Mahavidyas. If you're worshipping Shiva, Ganpati, all deities. All deities. So you need not focus specifically on Kundalini. You focus on the deity. As and when required, whenever the experience is to happen, it will happen organically. This is different for different people. It's different for different, obviously. But if you have to focus specifically on Kundalini, then to awaken Kundalini or something like that, or any process that forcefully focuses and awakens Kundalini, you need to have a very competent guru with you. Okay. What happens after your Kundalini Jagran? No, that is too vast. No two individuals will have the same experience. What you described is what is the theoretical idea. So this coiled snake and all that, these are all figurative ideas. Very figurative. Coiled snake represents the three gunas that is there, which holds the Shakti inside. And then when it comes out, then it will come out. And it won't go to your top right at the stage 1. It will most likely be functioning at a greater force in some or the other of your chakras, and something or the other will happen. So that is why the original idea was that what people need to remember in Kundalini is that so long as you're worshipping a deity, whichever deity is your Ishta Devata, you don't worry too much about Kundalini. You just keep worshipping. The deity will take care whenever it has to happen. B, if you're specifically interested in Kundalini awakening, then there were methods like that, but for that you need to have a competent guru, and never ever is going to, it can happen through a mass scale kind of program. Okay. That is actually dangerous.
you can lose your mind as well. You can cause lot of problems. Whole point of spirituality is having things under control, not uncontrolled, not ending up becoming a wreck. It is not enough that I have, some people will have by birth, I've seen people like that, some psychic visions and things like that, psychic abilities, all that is wonderful, but it's meaningless. Spirituality is more than that. That steadiness, that balance, that transformation has to come in. If that is not happening, and you are exactly where you are, all the visions or all the psychic abilities are all meaningless. It's basically energy that you are not able to digest. Do you think psychic abilities are dormant in everyone? Everything is dormant in everyone. Yes. So yes, in a very broad time scale, yes. What does the word psychic mean? So any kind of extraordinary extrasensory abilities, clairvoyance, clairaudience, this, that, etc., whatever it is. And there must be siddhis and practices related to each of these in Tantra. No, Tantra does not ask you to focus on these things at all. It is, your aim is to focus on the deity. Okay. Eventually these things organically will come. So you don't, the mistake that has happened over decades, and this started with after the post-British era, too much of theoretical ideas came in, and everybody was told that, okay, Siddhi is very bad, I don't want Siddhi, I don't want Siddhi. That's like saying, I'll jump into a swimming pool, but I don't want to get wet. How is that going to happen? Fair. Okay, now you said that in any of the Mahavidya worship practices, as you move towards the Mahavidya, at some point the Kundalini Jagran will happen. Yes. Now, say if there are... Before we continue the video, मैंने एक चीज बतानी थी आलोक, पता नहीं तुमने ये सुना है कि नहीं सुना है. He talked about accidental कुंडलिनी जागरण, है ना, ये अपने आप हो जाता है कई बार और वो डेंजरस होता है. मैंने ये सुना है कि जब कई बार हम वो देखते हैं ना, इंसिडेंट्स होते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, राइट, और कॉज ऑफ डेथ होता है ब्रेन हेमरेज. दैट डज नॉट हैव अ प्रॉपर मेडिकल कॉज. मतलब एक मेडिकल टर्म्स में उसका कोई एक वो रीजन नहीं है प्रैक्टिकल कि इस वजह से हुआ, वो बस हो गया. कॉज पता है कि इस वजह से ये हो जाता है, और उसका मेन पता है क्या रीजन देते हैं वो, कि एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी सर पे, ब्रेन के बिल्कुल यहाँ टॉप पे. मेडिकल साइंस कहती है ये, but they don't know how it happened. It just happened and that's what the name they have given it. और कई लोग होते हैं जो फोर्सफुली ट्राई करते हैं कि मेरे को कुंडलिनी अवेकन करनी है अपनी. they try, they do a whole lot of things. वो उनका डायरेक्शन आई थिंक चेंज हो जाता है कई बार. जैसे पता नहीं वो तंत्र विद्या की क्या विद्या, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट वो ऐसे पाथ पे चलने लगते हैं जिससे वो ना फोर्स करते हैं. अभी वो रेडी नहीं है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्टिल दे वांट इट. उनकी ईगो इतनी ज्यादा हो जाती है कि दे एंड अप हार्मिंग देमसेल्फ. अब कई लोग मेंटल असाइलम चल जाते हैं, कई लोग खत्म हो जाते हैं. एक आपने वीडियो देखी होगी, और आई थिंक आपने देखी होगी, मुझे लगता है ऐसा कि, और उसमें ना क्या होता है कि देयर इज़ अ गुरु, और आप सिंपली बेड पे लेटे होते हो, बेड पे या फिर फ्लोर पे लेटे होते हो, और वो हाथ से ऐसे करे कुछ करती है, और कुंड अब उसमें एक आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है. साधु जो है वो फूल निकालते हैं ऐसे, वो वाली वीडियो? नहीं वो वाली नहीं, मतलब दाढ़ी ऐसे करते हैं और नहीं वो अलग है. हाँ, वो अलग है. और उस पर ना मतलब क्या होता है, एक जो पर्सन लेटा होगा, और अदर पर्सन नहीं मीन्स गुरु, वो ना हाथ से ऐसे कुछ एनर्जी का फ्लो करते हैं, एनर्जी का फ्लो करेंगे. और जैसे हमारे कितने 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रा होते हैं, तो हर एक चक्रा में वो ऐसे एनर्जी का फ्लो करते हैं. और फिर ना वो वहाँ पे एक सेंसेशन सी फील होगी उस पर्टिकुलर एरिया में. जैसे सपोज थ्रोट चक्र पे कर रहे हैं, तो मेरे को ना यहाँ पे एक सेंसेशन सी फील होगी, और मेरे को ऐसे अंदर से बहुत ही एक एनर्जी अंदर से फील होगी. तो वो भी एक तरीका होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का, बट वो ना बॉडी हमारी रेडी होती नहीं उस चीज़ के लिए, और वो फोर्सफुली करवा रहे होते हैं दूसरे पर्सन. तो ये थोड़ा सा ना मॉनेटरी भी हो जाता है, वो मतलब किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ तो फेवर कर ही रहे हैं उनके लिए, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं. बट नहीं ऐसा करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी रेडी नहीं है और हम कुंडलिनी अवेकन कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी बेयर ही नहीं कर पाएगी यार. वो इतनी एनर्जी की कैपेसिटी नहीं है बॉडी की. या तो हम पागल हो जाएंगे, या फिर कोई डिसीज़ हो जाएगी ऐसी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है. अभी हमें पता नहीं है ना बहुत सारी चीज़ों का, ह्यूमन साइकोलॉजी के. इवन जो ग्रेट स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, तो वो भी
कुंडलिनी जब अवेकन करते हैं पहले मूलाधार चक्र से, फिर ऊपर ऊपर आते आते फिर जब टॉप वाला जो चक्र होता है, तो वो जब अवेकन हो जाता है उसके बाद समाधि लेते हैं। समाधि लेने के बाद फिर जानते हैं कि जब भी ये एक्टिवेट हो गया यानी कि कुंडलिनी अवेकन हो गई है, तो अब इतनी एनर्जी आ गई है, वो एनर्जी इस बॉडी में रह ही नहीं सकती, उनको बाहर जाना रहेगा। तो एट दैट टाइम वो समाधि लेते हैं। अब मेरे माइंड में एक और चीज भी आती है कि मतलब कई हम बोलते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है ना कि मोक्ष चाहिए, हम्म मोक्ष पाना है, इस साइकिल से निकलना है, बट देन वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट डीपली कि मोक्ष पाने का मतलब है डेथ, मतलब लाइफ हम्म को छोड़ देना। आर यू रियली थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस बॉडी, लाइक आर यू रेडी फॉर इट? ये क्वेश्चन करना चाहिए आई थिंक लोगों को जब वो ऐसी बात करते हैं ना। आजकल बहुत कूल लगता है लोगों को हम्म कि ब्रो मोक्ष, ब्रो लिबरेशन, ब्रो साइकिल से निकलना है, ब्रो आर यू सीरियस, आर यू जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट कि क्या बोल रहे हो। अभी बट इसमें ना मतलब मेरी नज़र में तो मोह का एक अलग मीनिंग है। मतलब मुझे क्या लगता है कि लाइफ आपको मिली है, लाइफ में इंजॉय करो, हर एक मोमेंट इंजॉय करो, बस ना किसी चीज़ से अटैच नहीं हो। वही मेरे लिए और तो वो वही मोक्ष मुझे इम्पॉसिबल है, समझ में आता है। वो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। तभी मैं ये ट्राई कहता कर हूँ कि सकते हैं। भाई मैं एज अ पर्सन ना आइडियलिस्ट हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ, और दैट इज वन ऑफ द टॉप रीजंस कि मैं डिसअपॉइंटेड रहता हूँ चीज़ों से। हमेशा मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है किसी ना किसी चीज़ से कि मैं भाई परफेक्ट क्यों नहीं कर पाया। और ये मेरे को रियलाइजेशन है, हो गई है अब कि नथिंग कैन बी परफेक्ट। तो व्हाट आई फील लाइक डूइंग इज, आप ना परफेक्शन की परस्यूट में रहो और डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि अगर वो आपके हिसाब से नहीं होगा। एटलीस्ट यू ट्राइड, एटलीस्ट यू नॉट एट जीरो राइट नाउ, यू एट 0.1, इफ नॉट 1, है ना? तो 0.01 से सॉरी 0.1 से 0.2 जाओगे, 3 जाओगे, कहीं तो जाओगे। 0.1 पे नहीं रहोगे आप, 0 पे नहीं रहोगे आप। तो ये एक चीज़ ना मेरे को बड़ी सही लगती है, अंदर से एक मेरे को पॉजिटिव पावर सी देती है, एक फेथ देती है कि ब्रो जस्ट डू इट। डोंट थिंक अबाउट कि ये कैसे होगा, परफेक्ट होगा, नहीं होगा, जस्ट डू इट एंड यू विल गेट बेटर। एंड वी ऑल नो राइट, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं लोग? जस्ट कीप ऑन डूइंग, डोंट थिंक टू मच, डोंट यू नो, इफ इवन इफ यू फेल, you are a new person, you are a better person, you will do it even better next time. तो आई थिंक इट्स ग्रेट। आई फील लाइक सबको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, जस्ट यू नो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल रियलाइज कि आप बेटर कर रहे हो वो चीज विद टाइम। वही है ना, तो या एक कोट भी तो है कि एम फॉर द मून, इवन इफ यू विल मिस द शॉट, स्टिल यू विल बी या अमंग स्टार्स। या और भाई तो विजन, विजन ब्रो, अपनी विजन हमेशा बड़ी रखो। हम इतने से हैं, मतलब बिल्कुल टाइनी स्पेक है हम इतनी यूनिवर्स में, बट वी स्टिल हैव दैट ह्यूज यू नो पावर ऑफ इमेजिनेशन। माइंड की इतनी पावर है, हम बहुत कुछ परसीव कर सकते हैं अपने थॉट्स में, बहुत कुछ चीजों की बातें कर सकते हैं। उस दिन हम बात कर रहे थे बिग बैंग की, यूनिवर्स की, और है ना दुनिया कितनी बड़ी है। तो आप अपनी जो माइंड है उसकी पावर पहचानिए, और आप अपनी विजन जो है हमेशा बड़ी रखिए। मैंने एक वीडियो में मैंने ऐसी मेरे थॉट में आया था, वो चैनलिंग सी हुई थी। मैंने कहा था कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन ऑब्जेक्टिव है, तो आप कर सकते हो वो। आपका अगर ऑब्जेक्टिव है चिड़ियों की तरह, ईगल की तरह हवा में उड़ना, तब मुश्किल होगा वो। आप सपने में शायद कर पाओ, बट एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स के लिए उड़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ इन द करंट टाइम्स। बट बट आप जो ह्यूमंस कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। आपको बस देखना है कि वो क्या डिसीजंस हैं जो मैं ले सकता हूँ अभी, थोड़े थोड़े करके, और फिर वो वहां पहुंच जाए। और वो पता है वो होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कुंडलिनी वगैरह पे बिलीव भी नहीं करना है, सच में। आप ये प्रैक्टिस करो स्टेप बाय स्टेप, थोड़े 0.1% से 0.2% पे जाओ, आपकी खुद ही कुंडलिनी अवेक हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो मेरी कितने चक्रास अलाइंड है, कितने नहीं है, लेकिन आई हैव क्लैरिटी ऑन दिस एंड इट हैज वर्कड फॉर मी, ट्रस्ट मी। एंड even if I have not helped myself, I have helped other people. Trust me. So बहुत लोग हैं जिन्होंने फील किया है कि ब्रो कुछ तो है, and it is working. So yeah, मेक सेंस।
ट्राई करूँगा मैं भी ये। अभी तक तो मैं दूसरी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। या Say if there's a pair of twins, Hmm. and one of them does Matangi worship, and one of them does. The Kundalini will awaken, and it is basically a release of a tremendous, powerful force. Now, this is going to be even more complicated, it may sound. When I was explaining that when you're doing sadhana of any deity and you are focusing on the dhyana of the deity, right? So you're doing the mantra japa and you are meditating on the dhyana and the formation of the deity. Eventually, there will be an astral formation of the deity, and that formation is going to take you to a higher realm. That astral formation's power will depend on whether you have had an experience of Kundalini or not. If a person has an awakened Kundalini Shakti, there is a huge amount of force at his own disposal, and that astral formation will become very powerful and active. It is basically a force, tremendous amount of force that is released, but force which needs guidance and direction. This guidance and direction comes through the Devata Upasana. The deity will, it is a large structure that has been given to you that helps to harmonize this thing and bring it at a a more sane way of engaging with this process. Almost like the deity. ब्रो, मेरे को सॉरी गाइस, मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ अभी चल रहा है। आई वांटेड टू शेयर वन थिंग। अभी इन्होंने बताया एस्ट्रल प्रोजेक्शन होती है। आप किसी देवता की पूजा करते हो, ध्यान करते हो, भक्ति करते हो उनकी, मेडिटेशन के थ्रू आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो कि आपके वो चक्रास अलाइन होते हैं, देन यू विजुअलाइज, यू सी द डेटी इन द एस्ट्रल फॉर्म, और वो आपको एक अलग डायमेंशन में, एक हायर एलिवेटेड स्टेट पे ले जाते हैं। ऐसा ऐसा समझा हूँ मैं अभी तक। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैंने क्यों पॉज किया? आई मीन टू म्यूजिक, राइट? मैं बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप्स, रॉक बैंड्स, मेटल बैंड्स सुनता हूँ और काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ। तो देयर इज वन बैंड फ्रॉम फ्रांस, बैंड का नाम है एल्सेस्ट। तो उसमें जो वोकलिस्ट है, उसका नाम है नीज। नीज फ्रेंच में बर्फ को कहते हैं, स्नो को। ये उसका बैंड नेम है बेसिकली। तो उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उसको विजन्स होते थे, उसको ना एस्ट्रल बीइंग्स दिखते थे। उसने बताया भी है कि वो कैसे थे, उनका एसेंस क्या था, मतलब उसको क्या फील होता था। I don't know if I've been lucky, but I had a spiritual experience when I was a child that really pretty much changed my life forever and made me question about a lot of things, you know, and I started to read about like things like near-death experiences and made like a parallel with my own story, because the only difference is in my case I was having these visions when I was awake, you know, and people were like out of their body, so they were not conscious. But yeah, this made me be very, very much into spirituality, and it's something that I need just as much as anything else, you know, like it's something instinctive for me. It's a raging thing that I need. I can say that I'm 100% sure about what it is, because it's so strange and it feels really it's something that I can't really describe or explain, so it would be quite pretentious to say that I absolutely know what it is, but I would say that maybe I would have kept like a memory from a place where I was before being here, and maybe it would be like some kind of intermediate stage in between two lives where the soul goes to rest, and that's what I still had in mind, you know, that for some reason it didn't get erased. और वो ऐसे टाउन में रहता था फ्रांस में, जहाँ पे उसके जैसे उसके थिंकिंग वाला कोई नहीं था। वो जैसा म्यूजिक सुनता था, वो जैसी मूवीज देखता था, कोई नहीं सुनता था। तो ही वाज अ मिसफिट इन दैट सोसाइटी जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ उसके पेरेंट्स, उसके पूरा घर था। तो वहाँ किसी से नहीं बनी उसकी। फिर जब से उसको विजन्स होने लगे, देन ही एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग समथिंग। ही वेंट आउट, घर नहीं छोड़ा उसने, बट बाहर गया, चीजें एक्सप्लोर की। he basically started focusing on music, started creating music, और आज के टाइम में he is a highly appreciated musician in metal scene in France। और ये जो इनका जो बैंड है, वो basically shoegaze black metal band है। ये it has nothing to do with anything antichrist or something. There are lots of other bands who do that, but ये जो band है, it's all about spirituality, it's all about nature, it's all about emotions। और आप, मैं लिंक्स में डालूंगा उनके 2-3 वीडियोस, आप प्लीज देखना, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरा कहने का ये मतलब है कि दीज थिंग्स, जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ये विजन्स होते हैं,
बीइंग्स होते हैं, इवन देवता, ये दे आर नॉट लिमिटेड टू आवर कल्चर, ये बाहर भी होते हैं, दे आर एवरीवेयर। वो मैनिफेस्टेशन तो एक ही गॉड की है ना, ब्राह्मण जो एक गॉड है, जो एक फॉर्मलेस, जेंडरलेस एक एनर्जी है, जिससे हम आए हैं, जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, जिससे सब कुछ बना है, तो वो उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है। अब नाउ उनको वहां पे वैसी दिखती है, वहां उसको दिखी है, एंड ही स्टिल बिलीव्स दैट थिंग। तभी मैं भी कनेक्ट कर पाया उस बैंड से, क्योंकि आई न्यू, मेरे को नहीं विजन्स हुए हैं, मेरे को मतलब बीइंग्स नहीं दिखे हैं बचपन में, लेकिन एक वीडियो में मैंने आलोक को शेयर किया ना, वो पेड़ दिखते थे मेरे को, और उससे रियलाइज होती थी चीजें, तो उस चीज से मैं रिलेट कर पाया कि आई वाज नॉट द ओनली वन हु वाज क्रेजी इन द चाइल्डहुड, आई वाज नॉट द ओनली वन हु थॉट कि भैया आई एम गोइंग क्रेजी, मेरे को क्या दिख रहा है, क्या सोच रहा हूँ मैं, फालतू चीजें। दे वर नॉट फालतू, they had some sort of significance. So guys, please check out this band, Alcest नाम है बैंड का, और they are really really good. And yeah, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो बिफोर वी कंटिन्यू द वीडियो, अभी जैसे हम अभी छोटे होते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया एलिसिस्ट का, तो वो जब छोटे थे तो उनको समझ नहीं आता था कि अरे ये क्या क्या हो रहा है, मतलब ठीक है मूवीज़ देखते थे बट उनको उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, फिर बाद में धीरे करके बड़े हुए, फिर बाद में रिलेट कर पाए कि अच्छा मेरे को ऐसे एंशिएंट बीइंग्स दिखती थी, मेरे को अलग डायमेंशन की बीइंग्स दिखती थी। तो ऐसे ही होता है, हम लोग भी जब छोटे होते हैं तो हमारी थिंकिंग अलग होती है, कि हमारा पर्सपेक्टिव अलग, पर्सपेक्टिव तो क्या बोलो, पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है कुछ, हमारा कुछ पता नहीं होता ना पर्सपेक्टिव नहीं चीजों का। होता। बस हम ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और क्यूरियस होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, बाकी लोग को तो लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा पता नहीं, लेकिन एक्साइटेड होते हैं हम, उस चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं। बस धीरे करके जब अब बड़े होते हैं, थोड़े अवेयर होते हैं, फिर हमको लगता है कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा था, हम ये हमारी जर्नी है, अलग है, हम इस वजह से ऐसा उस टाइम पर फील करें, तो हम ना डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं, और डॉट्स हम तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हम बैकवर्ड देखते हैं, हम फॉरवर्ड डॉट्स तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, जब बैकवर्ड देखते हैं सारे के सारे डॉट कनेक्ट होंगे, और फिर उस टाइम पे लगेगा अरे यार अगर मैं आज इस टाइम पे पॉडकास्ट अगर आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो एक छोटा से छोटा डिसीजन होगा ना मेरी लाइफ का, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मुझे लग रहा होगा कि वो किसी चीज़ के बराबर नहीं, मतलब बिल्कुल माइन्यूट सा, तो वो भी उसकी भी ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस अभी आपके सामने यहाँ पे बैठ के हम लोग साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रिएक्शन दे रहे हैं उसके लिए, तो ये डॉट्स हम सारे बैकवर्ड ही कनेक्ट करते हैं, और फिर उस प्रेजेंट टाइम नहीं मोमेंट पता में। था कि ये चीज, हम्म, कि हम इस चीज की हम डिस्कशन करेंगे, और ये चीज हम बताएंगे कि भाई वो चीज औरों के साथ भी होती है और उसका कुछ हाँ। सिग्निफिकेंस है। और अभी जहाँ हम हैं, अभी जितनी भी रियलाइजेशन है, वो हो सकता है कि उस वजह से हो रही हो, वो स्टार्टिंग हम्म, पॉइंट हो उस चीज का, राइट। वो होता ना कि एक डोर ओपन हुआ हो, अलग डायमेंशन का, मे बी वो डोर था जो ओपन हो गया हो, उस टाइम हमें पता नहीं चला, लेकिन धीरे 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 वी काइंड ऑफ स्टेप्ड इन, एंड we noticed everything, and so everything noticed us, and now we are हम्म, in the same journey. तो अब हम मे बी और कोई डोर्स ओपन होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज लेट अस नो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है। इट वुड बी नाइस टू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल, कि आपको क्या दिखा, अगर कुछ आपको दिखा बचपन में या अभी, या कोई ऐसा रियलाइजेशन हुई, तो या विल वेट फॉर योर कमेंट्स। वी कंटिन्यू चलिए करें। वीडियो कॉन्ट। हाँ। It Xerox copies itself and leaves the version of itself Correct, with you. correct. And if your formation, if your dhyana and all that, and the right bhava is there when you are meditating on the deity, and that suppose a person has Kundalini's Shakti at his or her disposal the right way, then the formation that you will have will be as good as the real deity. It will have all the abilities of the real deity, extraordinary powers, but it will interact with you. It will have a life of its own. It will be as good as the real deity. And such people you will see will be will be known across others. Whenever that kind of a thing happens, it brings an extraordinary aura in them. They will stand out. Make no mistake, they will stand out. The force of the deity will be with them. Some effects and many small things are there with this, along with this, but eventually one day, through those practices, they will attain to the actual devata who is there in the higher realms. And the moment they attain to that state, and it could be any deity, Mahavidya, Ganpati, anybody, it will be what is, for lack of better words, a state of enlightenment. Fun. This is reminding me of the Disney movie Aladdin, Fun. Okay. where you have that genie to yourself. It's just that whatever you're building, or the Xerox copy of the deity is the genie of genies.
Yeah, and this is actually a complicated concept for a lot of people. Uh, दिस गाय डजंट हेजिटेट कभी-कभी कुछ भी बोल देता है यार। बट हाँ, आई थिंक इसको भी पता होता है कि ये क्या बोल रहा है, तो ही नोज़ कि ह्यूमर इम्पोर्टेंट है ऐसी डिस्कशन में, क्योंकि ऐसी डिस्कशंस का ना कंक्लूजन नहीं निकलता, सो टू से। हम्म। तो या दैट्स गुड। आई थिंक तभी इसका पॉडकास्ट सही चल रहा है। ही नोज़ हाउ टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। और एक चीज़ और कि जब भी हम ना किसी भी रिएक्शन में किसी भी पॉडकास्ट में अपना जब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं ना, तो फिर जो व्यूअर होता है, व्यूअर थोड़ा सा रिलेट कर पाता है हुँ। कि ये ना बस बातें नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तभी ये बातें ऐसी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं वो रिएक्शन देते हैं वीडियोज़ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग द वीडियो आउट। हम्म। हम सोचते हैं 10 बार कि यार इस पे रिएक्ट करें ना करें, ये रिलेटेड है हमसे या नहीं। हम कुछ भी उठा के देखने लग जाएँ तो वो नहीं है पर्पस हमारा, और हमें पता है कि जो लोग देख रहे हैं, जो भी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी, तो वी एप्रिशिएट यू गाइस। वी नो कि यू नो व्हाट वी आर डूइंग, एंड यू नो वी ऑल नो कि we don't know a lot of things, so we are हाँ। exploring. That's the purpose of this channel. So I hope you have subscribed. If you haven't subscribed, please do. Please join our community. We react on a lot of different topics, deep stuff, indigenous cultures, music videos, even movie trailers, जो कि उस लेवल की होती हैं, अच्छी मूवीज होती हैं, जिससे कुछ सीखने को मिलता है, etc. etc. For those of you who are supporting us in this journey, we appreciate you guys. 500 subscribers के बाद we'll have a community, we'll do something more interesting. आपके पास कोई suggestions है तो you also can share, and yeah, we appreciate that. to that hypothetical scenario that I was creating, if there is a pair of twins equally evolved, equal amount of practice, but one is worshipping Matangi as a Mahavidya Tantra, and the second मातंगी कौन है? महाविद्या है ना, 10 महाविद्या होती हैं, तो उनमें से एक है। हाँ, उनमें से एक है आई थिंक। ओके ओके, आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है इसमें उनके बारे में बताया होगा। पूरा पॉडकास्ट हाँ अभी हमने हाँ। देखा नहीं है, तो मे बी ये तो ये पब्लिश तो हम आगे अभी क्लिप देख रहे हैं, तो फिर हम्म पॉडकास्ट में होगा ओके। यस। one is worshipping Chinnamasta. They'll both get Kundalini Jagrans at one point if they do their practice well. But will the Kundalini Jagran cause because of Matangi be different from Of the course. and it'll be dependent on the properties of the deity? Yes, Kundalini is like exactly like, imagine that there is a huge gush of water, but the water has no shape of its own. It can take any shape of the container. The container is your deity that you are worshipping. Damn ब्रो, ये नहीं मेरे को पता था यार, ये बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है, टू बी ऑनेस्ट। इट विल बी, हमें लगता था जनरल कुंडलिनी अवेकन होती होगी सबके, वो चक्रास अलाइंड होके एनलाइटनमेंट, ऐसा कुछ आइडिया था, ऐसी जो पिक्चर बनी हुई थी। इंटरेस्टिंग यार। वही है ना यार कि बताओ, मतलब आपको वही है कि आपका आइडल है कौन, आपके आइडल वाली क्वालिटीज आपके अंदर ही आएंगी। चूज योर आइडल वाइजली, क्योंकि हमारे आई थिंक कल्चर में, आई डोंट नो सबके साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो होता है, मतलब कि वी हैव सो मेनी मैनिफेस्टेशन, सो मेनी गॉड्स गॉडेसेस, तो किनकी पूजा की जाए घर पे, तो जैसे सबके घर पे ना एक प्राइमरी देवता होते हैं, भगवान की पूजा होती है, कई जगह गणेश जी की होती है, शिव जी की होती है, कई जगह कृष्ण भगवान की होती है, राम भगवान की होती है, माताओं की होती है, कई जगह दे जस्ट हैव ओम, राइट? वैदिक जो एक कॉन्सेप्ट है, कई वो करते हैं, आई थिंक स्मरतास कहते हैं उन्हें, जो आइडल वर्शिपिंग नहीं करते हिंदुइज्म में। I forgot the name guys, if you remember please comment down below. तो मतलब बहुत सारे प्रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे हमें ऑप्शंस हैं। नाउ हम जिससे रिलेट कर पाते हैं ज़्यादा, उसकी हम पूजा करते हैं, राइट? और फैमिली में जो चलता आ रहा है उनकी पूजा करते हैं। बट आई थिंक अगर हमारा इनकार्नेशन हुआ है, राइट, रीइनकार्नेशन हुआ है, तो हम, हमारी जो पिछली आत्माएं रही हैं, जो मतलब एक ही आत्मा रही है लेकिन पिछली लाइफ रही है, हमने कितने भगवानों की पूजा की होगी अगर हम उस फैमिली में रहे होंगे, उस कल्चर में रहे होंगे हम, तो मेरे साथ ये कंफ्यूजन होती है कि मतलब मैं कृष्ण भगवान की पूजा करूं, गणेश जी की करूं, क्योंकि मेरे को बताया गया है
I don't know if I should talk about it in public, but जैसे इष्ट देव होते हैं, मेरे इष्ट जो देवी हैं वो दुर्गा माता, काली माँ, और मेरे घर पे कृष्ण भगवान की पूजा होती है, राधा कृष्ण, इस्कॉन फॉलो करते हैं मॉम डैड। ऐसा नहीं है कि यही करना है, ये नहीं करना, मेरे को कोई ऐसा नहीं बोलते कि तू इस्कॉन ही फॉलो कर। इट्स ओपन कल्चर, वो ठीक है, बट स्टिल मैं कभी सोचता हूँ कि यार सही क्या रहेगा इसमें? मैं पर्सनली जिनसे कनेक्ट कर पाऊँ, अब मैं कृष्ण भगवान से भी कनेक्ट कर किया हूँ पहले, दुर्गा माता से भी किया हूँ। मैं ओम जो एक फॉर्मलेस हुँ, एनर्जी हुँ। है, वो भी मेडिटेट करते हैं, उनसे भी कनेक्ट हुआ हूँ। तो आई एम इन दैट सिचुएशन जिसमें मेरे को थोड़ा-सा लगता है कि यार व्हाट्स द राइट वे? मेबी आई एम लॉस्ट। So I probably need to, start meditating in some way where I can figure out कि मेरे को किन की पूजा करनी चाहिए। यार अभी मेरे को लगता था ना ये चीज़ मुझे क्लियर है। अभी आपने ये बोला कि ऐसा-ऐसा है, तो मेरे को भी लग रहा है यार कि मैं भी यार डाउट में ही हूँ, मैं भी कन्फ्यूज़ ही हूँ। तुम वैसे प्राइमरीली किन भगवान को पूजते हो? शिवा। मतलब पूजा करते हो? शिव जी की? हुँ, हुँ। और मतलब केवल शिवा नहीं है, बाकी भी कर लेता हूँ कभी-कभी, बट प्रेफ़रेंस मेरी मैं जब थोड़ा। हुँ, ट्रैकिंग हुँ। पे होता हूँ ना, जब मैं जैसे नेचर में हूँ, पहाड़ हुँ, देख रहा हुँ। हूँ, तो शिव जी। मतलब हुँ। ओम नमः शिवाय, और अभी मैं एक एक जगह गया था, तो वहाँ पे पहाड़ थे काफ़ी सुंदर, और वहाँ एक पहाड़ बिल्कुल माउंट कैलाश की तरह दिख रहा था। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मतलब एग्ज़ैक्ट वैसे ही शेप, और मतलब वैसे ही हमें फ़ील आई वहाँ पे जाके। मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड की है। हाँ। मतलब वो भी मेरे को लगता है कि यार, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो वहाँ पे ना वो जैसे पार्वती वैली है, तो शिव जी का थोड़ा-सा एक कनेक्शन अलग होता है। तो उस टाइप की भी फ़ील है, और हाँ, हमारे हिमाचल में हर गाँव में देवता होते हैं। हर गाँव में देवता या देवी होती है। तो वो भी प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज होते हैं। उनका भी कनेक्शन देवी माँ और दुर्गा माता बेसिकली और शिव जी से है। जो देवता हैं वो उनका शिव जी से है, उनको शिव जी का अवतार कहते हैं, और जो देवी हैं उनको माँ दुर्गा का अवतार कहते हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक आई थिंक पॉडकास्ट भी है इसका, लोग उसपे भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने भी नहीं देखा है वो, मैंने सोचा था कि देखूँगा। उसमें कोई ना हिमाचली एक्सपर्ट हैं, आई थिंक प्रीस्ट है वो, किसी गाँव ओके। के, वो बात कर रहे हैं देवता के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है? तो आई थिंक वी विल रिएक्ट ऑन दैट। हुँ, हुँ। करते हैं, उस पे भी करेंगे हम। हाँ। और अभी ये सारे डिस्कशन के बाद मेरे को भी एक चीज़ और याद आ रही है कि हुँ, हुँ। जब मेरे को ना थोड़ा-सा ऐसे अंदर से फ़ियर जैसे लग रहा होता है, नाइट में होता है कभी, कई बार तो थॉट्स आते हैं कि अरे मतलब यहाँ पे कोई स्पिरिट घूम रही होगी, मतलब यहाँ पे कितनी सारी लोगों की डेथ हुई होगी मेरे से पहले, 1000 ईयर्स बैक, अभी से 100 साल, हुँ, 2000 साल ऐसे पहले। तो फिर मेरे को लगता है कभी-कभी ऐसे मेरे को ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं बहुत सारे। फिर मेरे को एनर्जी फ़ील करनी होती है, तो उस टाइम पे मैं शिव जी का कोई मंत्र नहीं चैंट करूँगा। मैं उस टाइम पे हुँ। हनुमान चालीसा पढ़ूँगा। हनुमान जी। सेम, हाँ। सेम ब्रो, सेम। तो यही है फिर। अभी अगर आप हनुमान जी की आप पूरे टाइम पे पूजा कर रहे हो, तो उस केस में आप ना थोड़ा-सा जो एक सुप्रीम पावर है और एक मतलब बलशाली हो जाओगे आप। आपकी बुद्धि बहुत तेज़ होने लग जाएगी, क्योंकि गुण आने लग जाते हैं ना उनके। और आप थोड़ा-सा ना ब्रह्मचर्य वाले साइड में आप जाने लग जाओगे। वहीं अगर आप लॉर्ड गणेश गणेश जी की आप पूजा करोगे, उस केस में आप थोड़ा-सा आप मैरिज लाइफ़ की तरफ थोड़ा-सा जाने लग जाओगे। वो वाले आपके क्वालिटीज़ आने लग जाएँगी। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होता है ऐसा कि, और अगर आप शिव जी की पूजा करें, थोड़ा-सा वैराग्य वाला थोड़ा-सा आपके अंदर आने लग जाएगा थॉट्स। Yeah, man, it makes sense. Actually, it makes sense. तो Oh वही man, wow. अब मैं जब तुम बता रहे थे, मैं रिलेट कर रहा था अपने एक्सपीरियंस हुँ, के साथ। हुँ। कि उस हुँ, टाइम ऐसे हुँ, ऐसे हुआ है, जब मैं इन देवता की पूजा की थी या इनके हुँ, मंदिर गया, तो वैसा-वैसा हुआ। मैन, हुँ। इट इज़ रियल। इट इज़ रियल गाइज़। आपका भी डेफिनिटली कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। आपने अगर सोचा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, डेफिनिटली कुछ ना कुछ कनेक्ट हुआ होगा, जो भी आलोक ने बताया। तो दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी गाइज़, दिस इज़ नॉट, नेवर हैव बीन। आई होप इस पे और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगी और लोग खुल के बात करेंगे, जैसे ये लोग आए हैं। आई रियली एप्रिशिएट रणवीर कि ये स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहा है हुँ, काफ़ी टाइम से, और अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन इनवाइटेड इन हिज शो, जो खुल के दे आर टेलिंग द स्टोरी। और ये मेरे को अपने कल्चर की ना बड़ी अच्छी बात लगती है। और मैं अभी इंडिया में हूँ भी नहीं, और इंडिया में ना होके मेरे को और ज़्यादा एक
एक फ़ील होता है कि यार अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़ना है। जब आप दूर जाते हो हम्म। ना किसी चीज़ से तो ज़्यादा आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो दैट इज़ हैपनिंग आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये चीज़ें हो रही हैं। आई होप और ज़्यादा हो इन द फ्यूचर। और एक चीज़ और आपने मेंशन करी थी कि जैसे पहाड़ में होता है, हर एक गांव के ना एक प्रोटेक्टर होते हैं। हाँ। तो आई थिंक ये ओवरऑल प्लेनेट में हर एक छोटा सा अगर कोई विलेज होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी टाउन टाउन हो, कोई भी शहर हो, बड़ा शहर हो, कोई भी छोटा गांव हो, तो वहाँ पे ना किसी न किसी चीज़ की पूजा करते होंगे वो लोग, वर्शिप करते होंगे, और वो जिनकी भी वर्शिप करते हैं तो वो उस गांव की पूरी को प्रोटेक्शन देते हैं, हुँ। रक्षा करते हैं यहाँ उनकी। ब्रो यहाँ भी हुँ। मैं हुँ। अल्बर्टा प्रोविंस में रहता हूँ कनाडा में। यहाँ बहुत छोटे-छोटे हैमलेट्स हैं। बट हुँ, वहाँ हुँ। हर हैमलेट में चर्च मिलेगी आपको। हुँ, हुँ। जहाँ चर्च नहीं है वो इंडिजिनियस गाँव है। इंडिजिनस आपको पता है दे आर ऑल अबाउट नेचर। वहाँ पे पेड़ हुँ। मिल जाएँगे आपको, पेड़ पे धागे लगाएँ, और पेड़ राइट? पे इट्स धागे लगाने सेम। से याद आया, पेड़ पे धाने धागे लगाने से याद आया, एक हिंदू कल्चर में भी, मैं भूल गया वो फेस्टिवल का नाम क्या हुआ था, उसमें ना पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटते हैं 108 टाइम्स, मतलब 108 बार हाँ, लपेटना होता है। तो वो एक होता है। गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर और आपको पता है इस फेस्टिवल के सब बारे कुछ में। रिलेट हो रहा है यार। या इट्स ऑल कनेक्टेड मैन। हम तो बस रिमाइंड करा रहे हैं खुद को ये चीज़ों के बारे में और मेन पर्पस क्या है? हम फालतू में नहीं कर रहे ये चीज़। मेन पर्पस हमारा ये है कि हमारी अपनी जो लाइफ़ है उसमें हम और ज़्यादा एलिवेट हो सकें। अब इस डायमेंशन में और ज़्यादा एक अपने पर्सपेक्टिव को हायर पर्पस पे ले जाएँ। अब ये बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं डिटेल में गया बट मेन आइडिया ये है कि आप अपना पोटेंशियल और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ जो भी है। अगर आप भूल चुके हो कोई चीज़ वो आपको रियलाइज़ हो और जो आपको लाइफ़ मिली है उसका फुल एक्सपीरियंस लो। ताकि एंड में जब आप डेथ बेड पे होंगे तो आपको रिग्रेट ना हो। मेरे हिसाब से ये पर्पस होता है। क्योंकि डेथ के बाद तो वी डोंट हैव दिस मटीरियल हमें पता ही नहीं है क्या होगा। तो जो है हमारे पास उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम्म, कहते वीडियो राइट? कंटिन्यू करते हैं। या which is why every Kundalini Jagran Is experience. unique and individualistic, and which is why the textbook ideas are all half baked. If you work hard enough and with discipline, it might happen in one life. Yes, but don't even think about it. It's a bonus. No, the original idea was, this is why I keep repeating this. If you look at the first set of Hindu texts, whether it's the Upanishads, Gita, do you find the term Kundalini anywhere? ओह! नो, Nowhere नो! it is there. It comes from the Hatha Yoga and Tantra texts around 9th, 10th century, with the belief that there is a competent guru along with you. You're not. It's not like you're leading a normal modern day life in society and things like that. And some guru you've met online, or maybe one mass scale initiation where 200 people are sitting. You're also sitting. Kundalini. No, not like that. You live with the guru in the Gurukul. Guru tests everything right from morning. What time you are getting up? What are you eating? What are you doing? What time you are going to sleep? Everything is controlled by the guru. In that kind of an environment, you focus on the Kundalini. It is the guru's responsibility to make sure that everything is safe and you have a quick, very fast experience. But the traditional idea is that you focus on the Devata and you worship the deity. Don't bother about the Kundalini. It will on its own, whenever it has to do, whatever it has to, it will do. Hey, if you enjoyed today. मैन वो कहते हैं ना कि यार भगवत गीता कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। ये आई थिंक हर चीज़ में ये अप्लाई होता है। हम हमेशा मैंने नोटिस किया है यार मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मेरी इंटेंशन उससे अपने लिए कुछ पाने है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जा रहा हूँ, राइट? और मेरी ओनली इंटेंशन ये है कि यार मैं अच्छी फ़ोटोज़ खींचूँगा, अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, इंस्टाग्राम पे डालूँगा, लाइक्स आएँगे। तब मेरे को वहाँ जाके उतना अच्छा फ़ील नहीं होगा जितना मैं एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ नई जगह। मैं देखने जा रहा हूँ कि मैं इतने टाइम बाद इतने किलोमीटर चल सकता हूँ या नहीं। ऊपर जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर मी। क्या मैं एक्साइटेड हूँ सरप्राइज़ के लिए या मैं द ओनली इंटेंशन मेरी ये है कि मैं बस फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ। और ये मैंने नोटिस किया कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि हाँ यार, बहुत टाइम हो गया इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं किया।
वीडियो नहीं बनाई, फोटो नहीं बनाई। तब वहाँ जाके ना मैं वीडियो अच्छी बना पाता हूँ, ना मेरी फोटोज़ अच्छी आती है, ना मैं एन्जॉय कर पाता हूँ। और डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये फोटो अच्छी नहीं आई, ऐसी लेनी चाहिए थी, वैसी लेनी चाहिए थी। ऐसा पहले हुआ है, बट अब मैं जैसे काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, है ना, एक्सप्लोर कर रहा हूँ जगह, तो मैं कई बार फ़ोन भी नहीं निकालता। ऐसे-ऐसे स्पॉट्स देखता हूँ, मैं बस देखता रह जाता हूँ कि यार क्या क्या चीज़ बनाई है ये नेचर ने। मेरा नहीं करता मन, लेकिन बाद में मैं ऑब्वियसली फ़ोटो खींच ही लेता हूँ कि यार आई डू वांट टू कैप्चर दैट मोमेंट, राइट? बट हुँ, हुँ। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर आई हैव actually I'm satisfied with my own observation. तो या ये एक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। और भी हैं बहुत सारे, बट ये अप्लाई करता है आई थिंक हर जगह कि आपको काम करना है, करते रहो और अच्छा फ़ील करते हो। इंटेंशन अपनी अच्छी रखो। तो इंटेंशन अच्छी होगी तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा और आपका फ़ोकस डाइवर्ट नहीं होगा एक्चुअल काम से। हम डाइवर्ट हो जाते हैं अगर हम सोचते हैं ना रिज़ल्ट के बारे में। वी डोंट फ़ोकस ऑन वर्क 100%। और मल्टीटास्क में भी यही होता है। हमें लगता है हम मल्टीटास्किंग अच्छी कर पाएँगे, लेकिन दैट just helps you to finish the task or finish हुँ, all the हुँ। tasks in less time. But the problem with multitasking is आप कोई भी टास्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, आप बस खत्म करने के लिए कर रहे हो। आपकी पूरी एनर्जी एक टास्क पे नहीं जा रही है। तो ये मैंने एक बुक में सीखा था, बुक का नाम है द वन थिंग। उसमें दे टॉक अबाउट फोकसिंग ऑन वन थिंग rather than multitasking. Just one thing. If you do it with your full focus, you will be a master of that thing. चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ है, मतलब आप उसको 100% एफिशिएंटली कर पाओगे। और आई थिंक ऐसी चीज़ें अगर हम सारी चीज़ें ऐसे करने लग गए, तो ब्रो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। इवन विद मेडिटेशन आपके थॉट्स, आप थॉट्स सॉर्ट आउट करोगे, एक-एक करके अगर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट होंगे। अगर आप जंप कर रहे हो फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम और मे नॉट बी वेल सॉर्टेड। हुँ, हुँ। ज़्यादा टाइम लग सकता है उस चीज़ में। आई एग्री। तो या अब कमेंट्स पढ़ते हैं। हमारा हर रिएक्शन वीडियो में ये रहता है कि वी रीड टॉप कमेंट्स और लेटेस्ट कमेंट्स टू चेक कि लोग क्या बात कर रहे हैं। इससे हमें थोड़ा और फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। चीज़ें कई बार हम मिस कर जाते हैं, तो दिस थिंग हेल्प्स। ओके, जजिंग बाय द कमेंट सेक्शन, आई गेस आई एम द ओनली वन हुज कुंडलिनी इज़न्ट अवेकन। वो होता है ना कि वो लोगों को लगता है कि हाँ, हम तो भाई हमें पता है, सब कुछ पता है। हम मैं भी अब जब बात कर रहा हूँ तो एक अंदर से ना ईगो मेरे पे वो बोल रही है कि भाई तू क्यों समझा रहा है लोगों को? तेरे को सब पता है हुँ। क्या? लोग भी अभी आई एम श्योर कुछ लोग देख रहे होंगे और वो ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई तू है कौन? तेरे को क्या ही पता है? मेबी उन्होंने बुक्स पढ़ी है बहुत ज़्यादा, मैंने उतनी नहीं पढ़ी। मेबी उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहे हैं मेरे से, मेबी मेरे से बड़े हैं वो। तो ही और शी मे बी थिंकिंग लाइक दिस कि भाई ये बंदा कौन है? ये क्या बात कर रहा है? इसको कुछ पता ही नहीं। तो द ओनली पॉइंट इज़ कि सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने-अपने लेवल पे होते हैं सब। दे आर वाइब्रेटिंग इन इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? तो आई थिंक दिस गाय आल्सो रेड समथिंग और समवन प्रोबेबली सेड समथिंग, उस लेवल का जो जो माइंड फक कर देता है। I get reminded of my tutor who would say I have repeated the formula 100 times, repeating again day before exam. The BA biceps should be more prepared for interviewing Russian Nandi so that deeper concepts come out. BA biceps should not ask permutation combination questions. Huh? Please read on topics, meditate, and then come to conclusion. तो ये भी ठीक है, हाँ, और डीप जा सकता है ये, बट आई थिंक रणवीर इज नाउ इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ different guests from all sorts of spectrum. होता ही है कि आप किसको इनवाइट कर रहे हो मतलब एक मैंने इनका एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया है, मतलब इनके चैनल पे नहीं आया, ये किसी और के चैनल पे गए थे एज अ गेस्ट। Hmm. तो बात कर रहे थे कि कभी भी इनवाइट करते हैं ना किसी को, तो एक उनकी ना एनर्जी का कुछ फॉर्म आपके अंदर आ जाता है। आप किसी से भी Hmm. बात करते हो ना, तो Mhm. अगर आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सामने वाले की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी किसी न किसी फॉर्म में। या तो आपके थॉट्स पे वो थोड़ा सा हैम्पर करेगी, या फिर Mhm. आपका जो ऑरा होता है, ऑरा को अफेक्ट करेगी, किसी न किसी फॉर्म में Mhm. आपको अफेक्ट करेगी। तो इसके बारे में इन्होंने बोला भी था कि कभी भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, 1 या 2 या 3 अगर एक दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में फिर
वो मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा सा मिक्सअप सा होने लग जाता है। तो वही होता है ना कि हम खुद के थॉट्स में और दूसरों के थॉट्स में फिर ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप सा हो जाता है। तो अभी इन्होंने राष्ट्रीय नंदी के पॉडकास्ट में रिएक्ट किया होगा, सॉरी रिएक्ट तो हम कर रहे हैं, आई मीन पॉडकास्ट बनाया था इन्होंने, तो फिर मे बी जो पुराने इन्होंने कभी पॉडकास्ट किए होंगे तो उनकी थोड़ी सी एनर्जी से अफेक्टेड थे कि उतना डीप में नहीं जा पाए। हम्म। मेरे को लगा तुम कह रहे हो कि ये और लोगों से पॉडकास्ट कर रहे थे तो उनकी एनर्जी रब रब ऑफ हो गई हो, तभी इनके साथ ज्यादा डीप नहीं जा पाए। हाँ हाँ रणवीर की बात कर रहा हूँ। हाँ, या ये मैं सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाकी दिनों में भी होता ही है कि अगर हम अभी आज की डेट में अगर हम किसी मूवी के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर कल की डेट में हम किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो कल तो जो आज वाली एनर्जी होगी वो अगले दिन वाले पॉडकास्ट में थोड़ा कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। Yep, makes sense. तो Bro, you are actually doing a very great job by asking these questions in your podcast and guiding millions to get answers to the mystical concepts of Kundalini and Tantra. May God bless you with all the happiness, man. Yeah, man, he's doing a great job. या We need more videos of Mahavatar Baba ji. हाँ यार, इनकी भी मेरे को इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इनके एक्सपीरियंस हुए हैं कई लोगों को, इवन मॉडर्न टाइम्स में अभी भी कई लोगों को ये दिखे हैं, ऐसा मैंने सुना है। आई थिंक वीडियोस भी हैं, मैंने लेकिन वीडियोस देखी नहीं। और जो वो है ना योगानंद परमहंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले जो वो थे, ओके, नाम वो सुना भी सा लग इन्हीं रहा है। के वो भी इन्हीं के आई थिंक डिसाइपल थे। डिसाइपल बोलना सही रहेगा या उनकी जो जनरेशन के आगे, वो क्या कहते हैं यार, डिसाइपल ही कहते हैं नहीं, जो गुरु के आगे गुरु बनते हैं, मैं नाम भूल गया यार। तो व्यूअर्स आप शायद समझ गए हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई आई होप आई एम राइट, बट प्लीज उनकी करेक्ट। लेगेसी कंटिन्यू करते हैं ऐसा। लेगेसी भी नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं, लेगेसी अच्छा। बोल एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कंटिन्यू करते हैं वो। जैसे गुरु दीक्षा होती है ना, वो तो डिसाइपल्स को दी जाती है। एक होता है कि पूरा जैसे गुरु हैं, गुरु के बाद एक और गुरु आते हैं, तो वो चेन चलती है, वो संप्रदाय नहीं कहते, गुरु संप्रदाय, तो वो आगे आगे पास ऑन होती है टू वन पर्सन एंड देन वन पर्सन एट अ टाइम। तो ये मेरे ख्याल से योगानंद परमहंस इनके थे वो अगले जनरेशन के गुरु। थैंक यू RN sir much thank you RN sir, such simple powerful explanation, very superb explanation. Let's check out some new comments. Everyone has psychic abilities. You can practice and improve them if you'd like to help people. Some people have some abilities already awakened. I have my clairvoyance, clairaudience, claircognizance, and clairsentience. Sometimes I also get clairgustance and clairalience, कुछ and they मीनिंग improve. मेरे को भी नहीं पता है यार, मेरे को clairvoyance पता है। ये होता है कि when you get ability to see future, फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला ये है, बाकी नहीं मेरे को पता है यार। And they improve automatically when you meditate. I've written a book about this. Oh man. नाइस। If you're going spiritually, ये same person है। Esoteria healing. If you're growing spiritually, your kundalini is already growing. And if you by this organic method, it will be safe. Otherwise, it can be harmful if you practice certain rituals without a guru. I've met two people who have lifelong effects that have completely destroyed their life. When I sense my kundalini during breath work, I feel up to my throat. Whoa, we need to check this person out. Esoteria healing. I'm here to guide you through the process of self-healing. Okay, we'll check it out later. But whoa, ये होता है guys, when you check comments, you get to meet these kind of people. Not we haven't met them, but we get to know कि कौन है ये, और ऐसे भी लोग हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं. Okay, let's go for the next comment. Before judging Ranveer, he is representing the mass. What a layman would ask or want to know, that's what is Ranveer putting himself in the question. Putting himself in such an ignorant place is to have a courage to be disliked and ridiculed. True. This perspective is better to watch peacefully and keep the mind pure for him and yourself. His success is everyone's success. Oh man, bhai, this guy actually knows the perspective. ये बंदे ने ना ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया है
द एंटायर डिस्कशन हम्म रणवीर को वो चाहे तो पूछ सकता है, डीप जा सकता है, लेकिन ही केप्ट इट वेरी normal, very, simple, so that more people can join the tribe, so to say. जिनको लगता है ना कि गलत ही है ये, जैसे हमें बताया गया शुरू से कि नहीं ये नहीं करना। हम्म कुंडलिनी का तो खैर पता नहीं था, बट जैसे तांत्रिक बड़ा गलत वर्ड बताया होता, तांत्रिक ये होते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं, वो ये है ना, वो उस टाइप की चीजें। बट नाउ वी नो आफ्टर लिसनिंग टू दीज गाइज, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है, जो मेडिटेट करते आए हैं डिसिप्लिन वे में, तब हमें पता चलता है कि ब्रो दिस वाज नॉट व्हाट वाज टॉट टू अस सिंस चाइल्डहुड। तो या, और दिस गाय डिड अ ग्रेट जॉब ऑब्जर्विंग, एंड इस कमेंट का रिप्लाई है बेसिकली ये जो हमने अभी पढ़ा था ना टॉप कमेंट्स में। हम्म हाँ, ये वाला, बियर बाइसेप शुड नॉट आस्क परम्यूटेशन फ्रॉम ब्रो। सब आपकी तरह डीप नहीं होते। दिस पर्सन शुड रियलाइज ये इनकी अभी कुंडलिनी अवेकन नहीं हुई है। दिस पर्सन हैज गॉट some work to do. But anyway, this was the video, guys. If you haven't checked out our other videos, we talked about Mount Kailash and Dhyanalinga. अगर आपको सदगुरु का पता है, he has consecrated a place at Isha Yoga Center. वहाँ पे ध्यानलिंगा मेडिटेशन एक एरिया है, वहाँ एनर्जी है, और वो कंपेयर कर रहे हैं माउंट कैलाश वाली एनर्जी से। तो क्या डिफरेंस है, और लोगों को कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या होता क्या है वहाँ जाके, तो उसके बारे में जानने के लिए प्लीज चेक आउट दिस वीडियो। हमने इस पे अपना पर्सपेक्टिव दिया, और बोनस चीज ये है कि मैंने यहाँ की भी चीज उसमें बताई है। सिमिलर चीज जो यहाँ पे एल्बर्टा कनाडा में होती है, यू विल बी शॉक्ड, आई एम गारंटिंग यू कि आपको हैरानी होगी, और आप फिर ना इसको जस्ट अ मिथ नहीं सोचोगे। यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, यू विल एक्चुअली change your mind. So that's what I will say. And all right, guys, then take care. Bye bye. Namaste.